Hello and welcome to the second video of the rise of nationalism in Europe. In the last video, we had talked about what is nationalism. We had discussed about the picture that you are seeing above, picture of Frederick Soryu, yeah, right. And in this video, we will go in details about how the nationalism started and how it all happened, what was the root cause, and all those things. Means all some more special facts about nationalism and all. So you may have recalled that nationalism started in France in 1789. If you have studied in class ninth, you may have remembered it. So let's talk about French Revolution and the idea of nation. So the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. As you would remember, France was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch, Louis XVI. You may remember the political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizens. Means from monarchy it became a democracy. Okay, the revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. The idea of La Patrie means that fatherland, and Les Citoyens, the citizen, emphasized the nation of a united community enjoying the equal rights under a constitution. So, while there was a revolution in France, you may remember that they talked about human rights, they talk about constitution and all. So, all this thing happened in France. Now, not only this, they talked about the fatherland, la patrie, the fatherland, les citoyens, means the citizen of the country. They talked about a united community. They talked about a single constitution. Not only that, the flag, the monarch flag, was replaced by a new French flag. The tricolor was chosen to replace the former royal standard. The state general was elected by a body of active citizens and renamed the National Assembly. New hymns were composed. La Marseillaise, you may have seen that national anthem, La Marseillaise. And everything was done in the name of nation. A centralized administrative system was put in the place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. Internal customs duties and dues were abolished and a union system of weight and measures was adopted. Regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words, to help other people of Europe to become क्षेत्रीय भाषाओं का त्याग हुआ. पेरिस में फ्रेंच बोला जाता था, तो एक कॉमन भाषा जो है एक देश के तौर पे फ्रांस को, फ्रेंच भाषा को लिया गया. और क्रांतिकारियों ने ये भी बताया कि ये उनका लक्ष्य है, उनका मिशन है, उनकी किस्मत है कि फ्रांस की तरह यूरोप के दूसरे देशों को भी डेस्पोटिज्म से आज़ाद कराए और जनता का शासन देश में स्थापित करे. When the news of the events in France reached in different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and Italy. With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French army began to carry the idea of nationalism abroad. तो फ्रेंच आर्मी जो थी वो नेशनलिज्म की आइडिया दूसरे दूसरे देशों में भी ले जा रही थी. अब ये जो आज़ादी थी ये अच्छी तो थी, लेकिन बेचारे इस आज़ादी की उम्र बहुत कम थी. क्यों? क्योंकि 1799 में आ गए नेपोलियन. अभी ये नेपोलियन 1799 में आए, 1789 से शुरू हुआ, 1799 में सब ख़त्म हो गया. और नेपोलियन जब आए तो उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए. पहला बदलाव तो ये हुआ कि जो डेमोक्रेसी थी फिर से मोनार्की बन गई. जी हाँ, फिर से मोनार्की बन गई. और नेपोलियन ने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे सुधार किए. ठीक, through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in administrative field he had important revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. पूरे सिस्टम को सुधारा. 1804 में जो है उन्होंने एक सिविल कोड लाया जिसे हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं. यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law and secured the right
to property. This code was exported to the regions under the French control, यानी फ्रांस का जहाँ जहाँ कंट्रोल था उन सभी जगहों पर ये नेपोलियन का जो कोड है वो लागू हो गया. In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom, gulami वगैरह सब कुछ हटा दिया. Manorial dues in the towns too, guild restrictions were removed. Transport and communication systems were improved. Peasants, artisans, workers, and new businessmen enjoyed the newfound freedom. अभी क्या हुआ उस समय जो किंगडम्स थी, अलग अलग किंगडम में अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे, अलग अलग तरह के वेट भी थे, अलग अलग तरह के मेजर्स भी थे. लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, सबको एक पूरे देश के लिए एक समान मेजर, समान वेट लागू कर दिया, जिससे बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदा होने लगा. ठीक है. यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी भी थी. इनसे उनको ये फ़ायदा हुआ कि जो टेरिटरीज़ हैं उन टेरिटरीज़ में, हाँ, तो उन टेरिटरीज़ में जो है कॉमन करेंसी चलने लगी. वेट सभी जगह बराबर थे. पहले बहुत दिक्कत होती थी. अब मान लीजिए एक शहर में कुछ और है वेट, तो दूसरे शहर में कुछ और है वेट, माप कुछ और है, करेंसी अलग अलग है, तो बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत सारे टैक्सेस थे. तो इन सभी चीज़ों को नेपोलियन ने हटाया. तो अच्छी चीज़ें तो थी, लेकिन नेपोलियन की तरफ से कुछ बुरी चीज़ें भी थी. बुरी चीज़ें क्या थी उसके बारे में बात करते हैं. हाउएवर इन द एरियाज conquered, the reactions of the local population to French rule were mixed. शुरुआत में तो सबको अच्छा लगता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वारसॉ, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी आज़ादी देने वाले. बट hand in hand with the political, they came to know that the political freedom was taken away from them. There was censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe, all seemed to outweigh the advantage of the administrative changes. शुरुआत में तो सबको अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला कि भैया यहाँ सेंसरशिप है, यानी नेपोलियन के बारे में कुछ भी बोलो मार दिए जाओगे. सभी घर से एक लड़के को फोर्स में आना ज़रूरी था, क्योंकि एक स्ट्रांग आर्मी बनानी थी जो पूरे यूरोप को जीतता. ठीक. धीरे धीरे ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे, जो एडवांटेज थे वो ख़त्म हो गए. अभी मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. अभी यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे की, तो अगर आपके पास मैप होगा तो आप मैप में देखेंगे मिड 18th सेंचुरी यूरोप में, जैसे उस समय मिड 18th सेंचुरी में कोई नेशन स्टेट्स नहीं था जैसा कि आज हम जानते हैं. आज हम क्या जानते हैं, आज हम जानते हैं जर्मनी जानते हैं, इटली जानते हैं, स्विट्ज़रलैंड जानते हैं. तो ये सब पहले किंगडम्स में थे. किंगडम कौन से थे, डचेस एंड कैंटॉन्स, जिसके रूलर्स जो थे ऑटोनोमस टेरिटरीज थी उनकी. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स. बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग जो हैं रहा करते थे. ठीक. दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स sharing collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic group. The Habsburg Empire that ruled over Austria, Hungary for example, was a patchwork for many different regions and peoples. तो कई सारे जाति, कई सारे ethnic groups थे. In it included the Alpine region also, the Tyrol, Austria and Switzerland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. तो वहाँ पर जर्मन स्पीकिंग रीजन भी थे. एट इन सभी जगहों पर जर्मन स्पीकिंग एरिस्टोक्रेसी थी. ध्यान रखें, एरिस्टोक्रेसी, सुपर रिच, अल्ट्रा रिच पीपल्स. ओके. अब आगे हम देखते हैं कि जो है इटालियन स्पीकिंग भी रीजन थी, प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया इन हंगेरी. ओके. सो इन हंगेरी व्हाट हैपेंड, हंगेरी में आधा जो जनसंख्या था वो मैग्यर बोलता था, वहीं दूसरे हाफ जो थे वो विभिन्न तरह की बोलियाँ बोला करते थे. इन गलेशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश. गलेशिया में जो एरिस्टोक्रेसी थे, सुपर रिच पीपल थे, वो पॉलिश यानी पोलैंड की जो भाषा वो बोला करते थे. बिसाइड दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर. राइट. सो मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल्स. ज़्यादा संख्या किसकी थी, पीजेंट्स की, किसानों की. Bohemians and Slovaks to the north and Slovenes in Carnia, Croats to the south and Romans to the east in the Transylvania. तो बहुत सारी विभिन्नताएं थी, बहुत सारे डिफरेंसेस थे, और इतने डिफरेंसेस होने के बाद एक पॉलिटिकल यूनिटी होना बहुत मुश्किल थी. और एक ही चीज़ सबको एक साथ बांधती, एक साथ लेकर आती, और वो कॉमन चीज़ क्या थी,
एलिजियंस टू दी एम्परर यानी राजा का विरोध, क्योंकि राजा जो थे वो दमनकारी नीतियाँ अपनाते थे, सिंगल हैंडेडली पावर रूल करते थे, जो मन में आया वो डिसीजंस लेते थे। तो इन्हीं कारणों से जो है वो अब राजा तो सबके लिए है, सबको डिसीजन का असर पड़ता है, तो इसीलिए एक ही कारण था, एलिजियंस टू दी एम्परर। तो इस वजह से वो एक साथ आए। नाउ द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस टॉपिक। तो एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास कैसे बने, क्या हुए, देखते हैं। तो सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned states in the countryside and also townhouses. They spoke French for a purpose of diplomacy, and in high society, their families were often connected by ties of marriage. The powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was farmed by the tenants and small owners, while in Eastern and Central Europe, the patterns of land holding was characterized by vast states which were cultivated by serfs. Serfs means the slaves. अभी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय दो ही थी, एरिस्टोक्रेसी थी और पिजेंट लोग हुआ करते थे। संख्या एरिस्टोक्रेसी की बहुत ही कम थी, पिजेंट की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और ये जो पिजेंट थे वो एरिस्टोक्रेसी के लिए काम करते थे। अब एरिस्टोक्रेसी क्या थे, बहुत रिच पीपल हुआ करते थे और इनके पास बहुत सारे फार्म्स होते थे, बहुत सारे टाउन हाउसेज होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, और ये गरीब लोग इनके लिए काम किया करते थे। अब फिर ये जो टॉपिक का नाम है मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, ये कहाँ से आए, इसके बारे में हम बात करेंगे। Okay, so in Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. तो अभी क्या हुआ कि जो शुरुआती दौर थी, तो इसमें जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्शन था और ट्रेड था, इसका मतलब हो गया कि नए नए नगरों का बनना। ठीक, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के सेकंड हाफ में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ओके, गॉट इट। तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब उद्योग जब शुरू हुए, तो उद्योग के शुरू होने की वजह से मार्केट्स बने, नए कमर्शियल क्लासेस बन के आ गए, इट्स वेक नए सोशल ग्रुप सामने आए जो वर्किंग क्लास थे पॉपुलेशन में, और इन्हें हम मिडिल क्लास कहने लगे। और ये मिडिल क्लास में थे कौन, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप्स वेयर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इनकी संख्या कम थी, और ये जो पढ़े लिखे लिबरल मिडिल क्लास थे, इनका ही विचार था नेशनल यूनिटी का, फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस एंड दैट गेंड पॉपुलैरिटी। तो इन्होंने ये विचार लाया और जो राजा की प्रिविलेजेस थी, विशेषाधिकार था, उसको ख़त्म करने के बारे में। आगे हम देखते हैं कि ये जो हमने अभी बात की कि लिबरल मिडिल क्लास, तो लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है, व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म stand for? Okay, so the ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. अभी ये लिबरलिज्म जो वर्ड है, लिबरल, तो लिबरलिज्म वर्ड लैटिन रूट वर्ड है लीबर, जिसका मतलब होता है आज़ादी। तो ये जो न्यू मिडिल क्लासेस थे, यानी जो वर्किंग क्लास थे, प्रोफेशनल्स थे, ये इनके लिए लिबरलिज्म क्या होता था, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ पॉलिटिकली। राजनीतिक तौर पे सबको समान, कानून के समक्ष सभी समान है। इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, सहमति की सरकार बने। आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय से ही लिबरलिज्म का मतलब होता था कि एक तंत्र यानी ऑटोक्रेसी का अंत होना, और जो विशेषाधिकार है उसका खात्मा होना, एक संविधान का होना, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का होना, पार्लियामेंट का होना। तो 19th सेंचुरी में जो लिबरल्स थे, उन्होंने इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी बात की कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी का खात्मा होना चाहिए। येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। तो सबको तो समान अधिकार था ही, लेकिन वोट देने का अधिकार सबको समान नहीं था। आपको याद होगा कि रिवोल्यूशनरी फ्रांस में
लिबरल डेमोक्रेसी शुरुआत हुई थी, राइट टू वोट मिला था, एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, यानी जो टैक्स दिया करते थे, जो हाईएस्ट ब्रैकेट में टैक्स देते थे वही असेंबली के मेंबर्स होते थे, और जो टैक्स नहीं देते थे चाहे वो पुरुष हो, और महिलाओं को तो कोई वोट देने का अधिकार था ही नहीं, तो वो पैसिव सिटीजन्स थे, उनको कोई पॉलिटिकल अधिकार नहीं था। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स all adult males enjoyed suffrage. However, the Napoleonic Code went back to limit suffrage and reduced women to the status of a minor. यानी नेपोलियन ने अपने समय में क्या किया कि जो सफरेज थी उसको, वोट देने का अधिकार था, उसको कम कर दिया, और जो महिलाएं थी उन्हें माइनर माना गया और सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स, यानी वो अपने पिता और पति के सब्जेक्ट्स होके रह गए, उनके अनुसार ही कार्य करेंगे ऐसा। अभी इसके वजह से क्या हुआ कि पूरे 19वीं शताब्दी यानी थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी कुल मिला के जो है महिलाएं और जो जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था तो वे लोग संघर्ष करने लगे। अब इसका नतीजा क्या हुआ आगे देखते हैं, और क्या ऐसे कारण थे जिसके वजह से यूनिफाइड हो गया यानी नेशन स्टेट बनने के कारण बने। तो नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएट काउंटलेस small principalities, a confederation of 39 states, German speaking 39 states. Each of these possessed its own currency and weights and measures. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. Duties were often levied according to the weight or measurement of the goods. तो यानी उस समय जो ये 39 स्टेट्स थे इन सभी के अलग अलग करेंसीज थे, इन सभी स्टेट्स में अलग अलग माप थी, अलग अलग ये थे, और सबका बैरियर था, और सभी जगह लगभग 5% टैक्स देना पड़ता था, और ये टैक्स जो होता था सभी देश के वेट और मेजरमेंट के हिसाब से होता था, यानी कभी ज़्यादा कभी कम। So as each region had its own system of weights and measures, this involved time-consuming calculation. The measure of cloth, for example, was the alley, which in each region stood for a different length. An alley of textile material brought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1 centimeter, in Nuremberg 65.6 centimeter, in Freiburg 53.5 सेंटीमीटर। ये सब 39 स्टेट्स में से थे, और इन सभी जगहों पर एक एली का अलग अलग माप होता था, जैसा कि आपने अभी सुना। तो सच कंडीशंस वेर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस, और ऐसा होने की वजह से क्या होता था, प्रॉब्लम ये आती थी कि सभी जगह अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे। तो ये जो कमर्शियल क्लास थे, जो मिडिल क्लास थे, उनको लगा कि ये इकोनॉमिक एक्सचेंज यानी जो चीज़ें हैं इनको एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो ये जो न्यू कमर्शियल क्लासेस थे, मिडिल क्लास थे, इन्होंने डिमांड रखना शुरू किया कि भाई एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए, यानी सभी जगह एक जैसा होना चाहिए, अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए, सभी जगह जो सामान इधर से उधर ले जा रहे हैं एक ही जगह दो, पीपल एंड कैपिटल सबका मतलब एकदम अनहिंड्रेंस होना चाहिए, बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। रेलवे बना तो रेलवे की वजह से नेशनल यूनिफिकेशन, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनल सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। तो धीरे धीरे एक सेंटिमेंट, एक भावना उभर के सामने आने लगी, और इस भावना की वजह से नेशनल सेंटिमेंट्स बनकर तैयार होने लगे, इस वजह से लोगों की मानसिकता में बदलाव आया। तो आज के वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड, देयर इज मोर टू कम, सो वी विल बी बैक वेरी सून विद द नेक्स्ट पार्ट, द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। So stay tuned, be safe, be at home, have a good time.